Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 11. The name of the paper is Introduction to Literature 2 and the topic is types of novels. We have been discussing types of novels for the last few lectures. It will continue in this lecture too. This lecture is specifically for the students of BA second semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The type of novel we are discussing today is roman à clef. As it is French, the pronunciation is quite different. Roman à clef. And F stands for French. It means, or it is translated as the book with a key. So what type of book and what type of key? As far as the book is concerned, it means the novel with the key. What type of key? This is what we are going to discuss. Another name for roman à clef is key novel, and in key novel, actual persons are presented under fictitious names. So the characters and what they do is actual, but their names are not actual, they are changed. Later on, a key is provided for those characters that this fictitious character represented this specific person in reality. Therefore, it is called a book with a key. So a key is provided towards the end of the novel. This genre developed in 17th century France, and as I said, the keys were provided later. Thomas Love Peacock's wrote Nightmare Abbey, and this novel had the caricatures of Coleridge, Byron, and Shelley. Now you know that Coleridge, Byron, and Shelley, they were poets, real characters, and they were shown with fictitious name, with the names which were not real. Disraeli wrote Venetia, and there were different characters which were notable figures of that period. Aldous Huxley wrote Point Counterpoint, and a little problem was caused by this novel because the personalities in this novel were D.H. Lawrence, Oswald Mosley, and Middleton Murray, and these were famous characters. So therefore a problem arose. इसको आप उर्दू में सुन लें, रोमा आ क्ले, ये फ्रेंच तलफ़ुज़ इसका, फ्रेंच लफ्ज़ भी है जिसका मतलब है बुक विद ए की, तो इसको की नावल भी कहते हैं, और जर्मन में इसको श्लोसल रोमा बोलते थे. मुश्किल सा नाम है. अगर आप ये छोड़ना चाहते हैं जर्मन वाले अल्फाज तो भी ठीक है. और इसमें जो एक्चुअल लोग हैं उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है फिक्टिशियस नामों के साथ, यानी फर्जी नामों के साथ, लेकिन जो जिक्र होता है उससे पता चलता है कि ये कौन है. ताहम नावल के एंड पर एक की दी जाती है जिससे पता चलता है कि कौन सा किरदार रियलिटी में किसके साथ मुआफ़िक़त रखता है या कौन है. 17th सेंचुरी फ्रांस में ये डेवलप हुआ. कीज जो है बाद में प्रोवाइड किए जाते थे. थॉमस लव पीकॉक ने नाइटमेयर एबी लिखा और इसमें कॉलरिज, बायरन और शेले की कैरिकेचर का मतलब है कि उनका जिस तरह कार्टून होता है इस तरह कैरिकेचर होता है. इनके किरदार जो दिखाए गए थे वो मज़ाहिया तरीके से. डिज़राइली ने वनीशिया लिखा और हक्सले ने पॉइंट काउंटर पॉइंट लिखा. इसमें थोड़ा सा मसला भी उठा, स्टर का मतलब गड़बड़, क्योंकि इसमें D.H. लॉरेंस जो कि मशहूर लोग थे, ऑसवर्ल्ड मॉसले और मिडल्टन मरे, इनका जिक्र था. I read it for you. In English, it is referred to as a key novel. इसको की novel कहते हैं. And in German as
श्लोसल रोमा, और जर्मनी में इसको ये कहते हैं। तो ये आप छोड़ सकते हैं इन जर्मन वाला, मुश्किल आपके लिए। यूजुअली अ वर्क ऑफ फिक्शन इन विच एक्चुअल पर्सन आर प्रेजेंटेड, ये वर्क ऑफ फिक्शन है जिसमें हकीकी लोगों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है अंडर फिक्टिशियस नेम, और उनके नाम फर्जी होते हैं। द genre developed in 17th century France, और ये फ्रांस में डेवलप हुआ 17th सेंचुरी में। द कीज वर प्रोवाइडेड लेटर, बाद में कीज प्रोवाइड की जाती थी कि कौन सा शख्स कौन सा है। एन अर्ली एग्जाम्पल इन इंग्लिश इज मिसेस मैनलेस द न्यू अटलांटिस, ये राइटर और ये उसका नावल पब्लिश्ड विद ए की टू इट्स कैरेक्टर्स, इसमें की थी कैरेक्टर्स की। थॉमस लव पीकॉक्स नाइटमेयर एबी नावल है उसका, कंटेंट कैरिकेचर्स ऑफ कॉलेज बायरन शेले, इसमें कॉलेज बायरन शेले की कैरिकेचर्स थे, यानी उसको जिस तरह कार्टून पेश करते हैं इस तरह पेश किया गया। डिजराइलीज वेनिशिया, इसने वेनिशिया लिखा और इसमें भी नोटेबल लोग थे। ऑल्डस हगलेस पॉइंट काउंटर पॉइंट कास्ट सम स्टर, इससे थोड़ा सा मसला बना। हगले ने जो पॉइंट काउंटर पॉइंट लिखा। इन इट द पर्सनालिटीज ऑफ डी.एच. लॉरेंस, ऑसवर्ड मोज़ले एंड मिल्टन मरे वर थिनली डिस्गाइज्ड, थिनली डिस्गाइज्ड मतलब कम डिस्गाइज थे, पता चलता था ये कौन है। सो दिस वाज all about the Romana clay. The next type is the antinovel. Now you know that when a novel is written, the fictitious thing is represented as if it is real. So there is that identification of the reader with the characters. Characters think that they are reading their own story, and there is the identification of the character with the hero or the heroine, and there is a kind of realism intentionally put into it so that the fictitious thing look real. The exact opposite is done in Antinovel. This was quite experimental, and the traditional storytelling methods are not used in it, because there is little or no attempt to create illusion of realism. The reader is not so much involved as if he is reading his own story. Reader is kept at a distance, and the writer deters the reader from self-identification with the characters. The purpose of the novel is that you identify yourself with the characters, but antinovel does the opposite of it. However, the reader participates in the story, but not vicariously, which means that he participates in the story, but he himself is not involved in it. He is not dragged into the story. If we take the example of Thomas Hardy and Henry James, Nabokov and Samuel Beckett, we find out that Thomas Hardy wrote novels, pure novels, Henry James wrote anti-novels, Nabokov real novels, and Samuel Beckett anti-novels. So there are the examples from James Joyce, Ulysses, and Finnegan's Wake. Virginia Woolf wrote Mrs. Dalloway and The Waves, also To the Lighthouse. Samuel Beckett wrote Molly and Murphy, and Lawrence Stern wrote Tristram Shandy. These were the different examples. The characteristics were these: the lack of an obvious plot, that there wasn't a clear-cut plot in such stories, anti-novels. Diffused episodes, that is, the episodes were not focused. The story was not so well knit. The plot's construction was also not so well knit. Minimal development of characters. Characters were not developed fully, and if they were developed, it was minimal. Detailed surface analysis of the objects, not deep analysis. Repetitions were there, and there were many experiments with vocabulary. The vocabulary used was the type of vocabulary in which there were experiments done.
There was also experiments on punctuation and syntax, and there was also a variation of time sequence. Sometimes detachable pages were attached, sometimes colored pages, sometimes blank pages. So this was something which was referred to as एंटी-नॉवेल. अब इसको उर्दू में सुन ले. एंटी-नॉवेल जैसे नाम से पता चलता है नॉवेल का उलट, लेकिन इसमें इसको तजुर्बाती तौर पे किया गया. जो रिवायती अंदाज था स्टोरी टेलिंग का, उससे इसका ब्रेक था, वो नहीं था. और आम नॉवेल्स में इल्यूजन यानी एक किस्म का धोखा क्रिएट किया जाता है कि ये रियल है, इसमें इसका उलट किया जाता है कि ये रियल नहीं है. और ये आप एज ए रीडर अपनी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स के साथ नहीं करते, राइटर भी नहीं चाहता कि आप आइडेंटिफिकेशन अपनी इसके साथ करें. तो पार्टिसिपेट करता है रीडर, लेकिन विकेरियसली नहीं करता, यानी अपने आप को इन्वॉल्व ना करते हुए. मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं. हेनरी जेम्स है, सैमुअल बेकेट है, जेम्स जॉयस ने यूलिसिस और फेनेगन्स वेक लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ की ये एग्जाम्पल्स हैं, और स्टर्न की ये एग्जाम्पल है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक वाज़ेह प्लॉट नहीं होता. जो एपिसोड्स हैं वो डिफ्यूज्ड का मतलब है कि फोकस नहीं होते, वाज़ेह नहीं होते, और कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता. एनालिसिस सरफेस होती है, डेप्थ एनालिसिस इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होती. रेपिटिशंस होती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वोकेबुलरी पंक्चुएशन और सिंटेक्स में की जाती है, और टाइम सीक्वेंस को भी उलट पुलट किया जाता है. इसी तरीके से इसके साथ कुछ पेजेस अटैच कर दिए जाते हैं जो अलग से आप पढ़ सकते हैं, और इन पेजेस को अगर आगे पीछे भी आप पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कलर्ड पेजेस भी इसमें होती है, तो ये हम इसको रीड करते हैं. एंटी-नॉवेल, दिस काइंड ऑफ fiction tends to be experimental. ये experimental fiction and breaks with the traditional storytelling methods. और जो रिवायती तरीक़ेकार है स्टोरी टेलिंग का, ये इसमें नहीं होता. एंड फॉर्म ऑफ द नावल, रिवायती फॉर्म ऑफ द नावल में नहीं होता. Often there is little attempt to create an illusion of realism. illusion धोखे को कहते हैं. रियलिज्म का धोखा पैदा नहीं किया जाता, और द रीडर के लिए असल नावल में होता है. It establishes its own conventions. इसके अपनी रवायात हैं. And a different kind of realism, इसका realism अलग किस्म का है. ऐसा realism which deters the reader, जिसमें reader इस चीज़ से मुतनफ़िर होता है from self identification with the characters, कि अपनी शनाख्त कैरेक्टर्स के साथ करे. असल नावल का तो मकसद होता है identification with the characters, इसका नहीं होता. Yet at the same time, लेकिन बैक वक्त परसुएड्स हिम, ये रीडर को आमादा करता है, पार्टिसिपेट, कि वो हिस्सा तो ले बट नॉट विकेरियसली, लेकिन खुद इन्वॉल्व ना हो. वन हैज़ ओनली टू कंपेयर नॉवेल्स बाय से टॉमस हार्डी एंड हेनरी जेम्स. अगर आप टॉमस हार्डी हेनरी जेम्स को कंपेयर करें तो हेनरी जेम्स एंटी नॉवेल लिखता है विद दोज बाय से नाबोकोव एंड सैमुअल बेकेट. और अगर इनके साथ कंपेयर करें तो टॉमस हार्डी हेनरी जेम्स ये लिखते हैं एंटी नॉवेल्स, और नाबोकोव एंड सैमुअल बेकेट टू सी हाउ द वर्क ऑफ द लेटर राइटर्स. ये दो राइटर्स, शायद उर्दू में मैंने इन हेनरी जेम्स और इसको कहा नहीं है, अब आप इसको करेक्शन कर लें. ये दो राइटर्स, लेटर राइटर्स से मुराद ये दो हैं, कम्स इनटू द एंटी नॉवेल कैटेगरी. तो अगर हम टॉमस हार्डी हेनरी जेम्स का मुकाबला करें तो टॉमस हार्डी हेनरी जेम्स नॉवेल लिखते हैं, प्योर नॉवेल, और नाबोकोव और सैमुअल बेकेट ये एंटी नॉवेल लिखते हैं. मैंने शायद उर्दू में हेनरी जेम्स और सैमुअल बेकेट का नाम लिया, इसको करेक्शन कर लें. वी कैन सी द प्रोसेस ऑफ एंटी नॉवेल इनोवेशन. इनोवेशन एक नई चीज़ को बनाना. एट वर्क इन मेजर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जेम्स जॉयस इन यूलिसिस एंड फेनेगन्स वेक. इन दोनों में ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एंटी नॉवेल के. इन सेवरल नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स हैं, डोलवे है, और वे द वेव्स है, टू द लाइट हाउस है. एंड इन द अर्ली फिक्शन सैमुअल बेकेट, जिसमें मॉलॉय और मर्फी शामिल हैं.
However, it may be that the possibilities were perceived, लेकिन इस जानरा के इम्कानात शायद सोचे गए लॉन्ग बिफोर बाय लॉरेंस स्टर्न की ट्रिस्ट्रम शांडी से पहले. ट्रिस्ट्रम शांडी माइट बी साइटेड. हम मिसाल के तौर पे ट्रिस्ट्रम शांडी को ले सकते हैं, नावल है, एज ए काइंड ऑफ एंटी नावल, कि ये एंटी नावल है. सम ऑफ द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ एंटी नावल आर, तो ये कुछ इसकी खसूसियात हैं. लैक ऑफ एन ऑब्वियस प्लॉट, वाज़े प्लॉट नहीं होगा. डिफ्यूज्ड एपिसोड वाज़े नहीं होंगे. मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी. डिटेल्ड सरफेस एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सरफेस एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ना कि डेप्थ एनालिसिस. डिटेल होगा लेकिन सरफेस एनालिसिस होगा. मैनी रेपिटेशंस, तकरार होगी. इन्यूमरेबल, बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स विद वोकैबुलरी, पंक्चुएशन, सिंटैक्स ये होगा. वेरिएशन ऑफ टाइम सीक्वेंस, आगे पीछे होगा, टाइम को भी आगे पीछे करेंगे. सम ऑफ द मोर एक्सट्रीम फीचर्स आर डिटेचेबल पेजेस. कुछ फीचर्स ये हैं कि पेजेस होंगी जिसको आप अलग कर सकते हैं. पेजेस विच कैन बी शफल लाइक कार्ड्स, जैसे कार्ड्स शफल कर सकते हैं. ये पेजेस आगे पीछे पढ़ सकते हैं, मसला नहीं होगा. कलर्ड पेजेस, ब्लैंक पेजेस. कोलाज का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, जिसमें ड्राइंग्स, हायरोग्लिफिक्स एक किस्म की तस्वीरें होती हैं जो किसी चीज़ को या अल्फाज को ज़ाहिर करती हैं. तो ये एंटी नॉवेल की बात हुई. इसके बाद हम पढ़ेंगे कल्ट नॉवेल. So that's all for now. Thank you and good luck.